اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والد پر مویشیوں کے نقل و حمل کا الزام لگا کر بیٹے کو کالج کے طلباء نے بنایا تشدد کا نشانہ. دانش قاضیہ اور سہیمہ محتشم کی تعلیمی میدان میں نمایاں کامیابی. فکر و خبر کی جانب سے دل سے مبارکبادی. نتیش بہار چلائیں گے اور میں مودی کے خلاف تحریک چلاؤں گا. لالو پرساد یادو کا بیان. بہار میں کنول مرجھا گیا. مہا گٹھ بندھن کو 2/3 سے جیت. کشن گنج میں پولیس کسٹڈی میں مسلم نوجوان مردہ پایا گیا. حالات میں سنگینی مگر قابو میں. 2015 کے آخر تک 10 لاکھ لوگوں کو گھر فراہم نہ کر سکا تو مونچھیں مڑوا دوں گا. وینزویلا کے صدر کا دلچسپ اعلان. یمن میں تازہ لڑائی میں 60 حوثی شدت پسند ہلاک. جھڑپوں میں دن بدن اضافہ. ناظرین اب خبریں تفصیل سے. بنٹوال. مسلم برادری سے تعلق رکھنے والے ایک لڑکی کے والد پر مویشیوں کے نقل و حمل کا الزام لگاتے ہوئے کالج کے طلباء کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنائے جانے کی سنگین واردات پیش آئی ہے. متاثرہ نوجوان کی شناخت PUC سال اول کے طالب علم محمد سلیمان کی حیثیت سے کر لی گئی ہے. اطلاعات کے مطابق مذکورہ نوجوان کے کالج میں زیر تعلیم شدت پسند ہندو تنظیموں سے تعلق رکھنے والے گنیش نتیش چندرہاس کرن پر الزام ہے کہ انہوں نے سلیمان کے والد پر مویشیوں کے نقل و حمل کا الزام لگا کر اس کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے بری طرح زد و کوب کیا. اس واردات کے منظر عام پر آنے کے بعد کیمپس فرنٹ آف انڈیا کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کرتے ہوئے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے. انہوں نے پولیس سے ملزمین کو جلد از جلد حراست میں لینے کا مطالبہ کیا تاکہ اس طرح کے واقعات مستقبل میں پیش نہ آئیں. بنٹوال دیہی پولیس تھانے میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے. دوسری جانب ملزمین میں نتیش نے کاؤنٹر کیس درج کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ فیض محمد سلیمان محمد فیاض نے اس کے خلاف نازیبہ الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اس کو زد و کوب کیا. اس جھڑپ کے بعد کالج کے پرنسپال کی جانب سے جاری نوٹس میں باہمی تنازع کو حل کرنے کی درخواست کی گئی تھی. پولیس اس پورے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے. بھٹکل. تعلیمی میدان میں جہاں شہر کے نوجوان نمایاں کامیابی کے ساتھ روشن مستقبل کی جانب بڑھ رہے ہیں وہیں طالبات بھی اس میدان میں اپنا نام روشن کر رہی ہیں. فکر و خبر کو دی گئی اطلاع کے مطابق دانش قاضیہ نے چامراجیندرا کالج آف انجینئرنگ سے الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانک انجینئرنگ کے فائنل سیمسٹر میں 9.85 گریڈ سے کامیابی حاصل کی ہے. مذکورہ نوجوان اب کیرلا کے مشہور شہر تریویندرپورم کے TCS کمپنی میں برسر روزگار ہیں. سہیمہ محتشم بنت مرحوم محمد علی محتشم کٹک کو ان کی نمایاں کامیابی پر شری جنانیشوری کالج کی جانب سے شالپوشی کرتے ہوئے عزت افزائی کی گئی. سہیمہ نے گولڈ میڈل حاصل کرتے ہوئے یونیورسٹی رینکنگ میں بھی نمایاں جگہ بنانے میں کامیاب رہی تھی. ادارہ فکر و خبر دانش اور سہیمہ کی خدمت میں تہ دل سے مبارکبادی پیش کرتا ہے. پٹنہ. کئی دنوں سے عوام کو جس چیز کا انتظار تھا اور عوام جس انتخابات کو لے کر آر پار کی سیاسی لڑائی تصور کر رہے تھے بالآخر آج عوام کو اس بات کا جواب مل ہی گیا. بہار میں جن 243 اسمبلی سیٹوں کے لیے 5 مراحل پر انتخاب ہوئے آج نتائج کے دن یہ صاف ہو گیا کہ مہا گٹھ بندھن یعنی لالو نتیش اور کانگریس کی پارٹی نے جملہ 178 سیٹوں پر جیت درج کر کے لگاتار نتیش کی تیسری بار اقتدار سنبھالنے کا راستہ صاف کر دیا ہے جبکہ وہ بہار کے 5ویں مرتبہ وزیر اعلیٰ بنیں گے. شام 5 بجتے جب ووٹنگ جاری تھی اسی وقت مہا گٹھ بندھن کے حلقوں میں پٹاخے جلنے شروع ہو گئے تھے اور اس طرح ایک بار پھر سیکولر عوام نے BJP کا پتہ صاف کر دیا اور نئی دہلی کے بعد بہار میں بھی نریندر مودی کی قیادت والی BJP کو ہار کا سامنا کرنا پڑا. جیت درج کرنے کے بعد لالو پرساد نے نتیش سے گلے مل کر مبارکبادی لینے کے بعد پریس کانفرنس میں صاف کہا کہ نتیش بہار چلائیں گے اور میں مودی کے خلاف تحریک چلاؤں گا. جبکہ کانگریس کے راہل گاندھی نے نتائج کے بعد کہا کہ فرقہ واریت کو کرارا جواب ملا
है। इसके अलावा नीतीश कुमार को ट्वीट्स और फ़ोन पर मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है। खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने भी नीतीश को मुबारकबाद दी। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज के अपने पहले ट्वीट में बिहार के लोगों का ज़बरदस्त हिमायत के लिए शुक्रिया अदा किया और उसके बाद मुबारकबाद देने वाले सरकर्दा रहनुमाओं का फ़र्दन शुक्रिया अदा किया। जबकि कांग्रेस रहनुमा अहमद पटेल ने कहा, बिहार की क़यादत और कारकुनों को मुबारकबाद। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड को भी सबने मेहनत की और एनडीए के झूठे दावों को शिकस्त दे दी। जेडीयू के सरकर्दा रहनुमा शरद यादव का कहना है कि ये जीत आवाम में पाई जाने वाली बेचैनी की जीत है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के नताइज ने वज़ीर आज़म को ये पैगाम दिया है कि बीजेपी और आरएसएस मुल्क को तकसीम नहीं कर सकते। पीटीआई के मुताबिक मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को मुबारकबाद दी है और कहा है कि रवादारी की जीत और अदम रवादारी की हार है। ख्याल रहे कि बिहार में मुकाबला जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के वसी इत्तेहाद और बीजेपी की क़यादत वाले एनडीए के दरमियान था। किशनगंज, यहाँ आज बिहार से इंतखाबात के नताइज में महागठबंधन की जीत की जहाँ खबर आ रही थी, वहीं एक अफसोसनाक खबर ये भी आई कि बिहार के किशनगंज में एक मुस्लिम नौजवान जो पुलिस कस्टडी में था मुर्दा पाया गया है, जिसकी बिना पर हालात में संगीनी देखी जा रही है, मगर हालात काबू में बताए जा रहे हैं। उम्मीद.com और दीगर वेबसाइट ज़राए में छपे रिपोर्ट के मुताबिक इस खबर के मंजर-ए-आम पर आने के बाद दो रिवायती हरीफों और पुलिस के माबैन हल्की सी झड़प भी पेश आई है। इत्तलात के मुताबिक दो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाला एक जोड़ा यानी लड़का और लड़की 1 महीने से गायब थे। लड़की के वालिदैन ने पुलिस थाने में लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पूर्णिया ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान और लड़की यूपी के गाज़ियाबाद से जो ताल्लुक़ रखती है, इन बिहार और यूपी पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। जुमा के रोज़ पुलिस अफसरान ने छानबीन के बाद उनको पकड़ लिया और फिर लड़की को उनके वालिदैन के हवाले करने के बाद मुस्लिम नौजवान को पुलिस कस्टडी में रख लिया, मगर सुबह के वक्त ये नौजवान मुर्दा हालत में पाया गया। इसकी मौत ने इलाके में कशीदगी फैला दी। बताया जा रहा है कि मकामी लोगों ने पुलिस थाने पर हमला भी किया और पुलिस अफसर जख्मी भी हुए। नौजवान की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद कई सवालात खड़े हो गए हैं और ये खबर बिहार के नताइज में दब कर रह गई है, जबकि कुछ इलाकों में कर्फ्यू का निवास भी कर दिया गया। मुश्तबा मौत की हालत में पाए जाने के बाद नौजवान की शनाख्त मोहम्मद इलियास उर्फ जुगनू के हैसियत से कर ली गई है। कराकस, वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मदुरो ने कहा है कि अगर उनकी हुकूमत 2015 ईस्वी के आखिर तक 10 लाख लोगों को घर फराहम करने का वादा पूरा न कर सके तो वो मूंछें मुंडवा देंगे। इत्तलात के मुताबिक वेनेज़ुएला के नौजवान सदर ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने आवाम से वादा किया है कि 31 दिसंबर 2015 ईस्वी तक 10 लाख बेघर लोगों को रिहाइश फराहम करेंगे। अगर वो अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहते हैं तो उसकी सज़ा के तौर पर अपनी मूछें मुंडवा देंगे, ताकि सबको पता चल जाए मैं एक बदअहद सदर हूँ जो आवाम से किए वादे पूरे नहीं कर सकता। ख्याल रहे कि 2010 ईस्वी के सैलाब के नतीजे में वेनेज़ुएला में हज़ारों ख़ानदान घरों से महरूम हो गए थे। साबिक़ सदर आंजहानी होगो शावेज़ ने भी बेघर लोगों को रिहाइश फराहम करने का अहद किया था। अपने वादे के मुताबिक 2013 ईस्वी में उन्होंने 3 मिलियन लोगों को मकान फराहम करने का ऐलान किया था, मगर 8 लाख लोगों को घर दे पाए थे। मौजूदा सदर मदुरो ने 6 दिसंबर को होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात से कबल ये बयान दिया है, जिसमें उन्होंने वेनेज़ुएला के बेघर लोगों को रिहाइश मुहैया करने का ऐलान किया है। तेल की कीमतों में कमी ने वेनेज़ुएला को भी मुतासिर किया है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी ने वेनेज़ुएला के समाजी बहबूद के बजट को सिफर कर दिया है। सना, यमन में हफ्ते के रोज़ इत्तेहादी फ़ौज के जंगी तैयारों की बमबारी और ज़मीनी फोर्सेस के साथ लड़ाई में कम से कम 60 हूसी बाग़ हलाक और दसियों ज़ख्मी हो गए हैं। अल अरबिया के मुताबिक मकामी ज़राए का कहना है कि वस्ती यमन की अज़ाले गवर्नरी के दमिश्क शहर में पुरतशद्दुद झड़पों में 9 हूसी हलाक और 14 ज़ख्मी हुए। ज़राए का कहना है कि अज़ाले के मशरक़ी महाज़ में अल अहरम और अल क़बाता की मकामात की तरफ अहम पेशकदमी है, जहाँ बागियों के हमलों में 5 हुकूमती फ़ौजियों की हलाकत की भी खबरें सामने आई हैं। यमन की जुनूब व मगरबी शहर ताज़ में हुकूमती फोर्सेस के साथ लड़ाई में 18 हूसी बागी हलाक हो गए हैं। 23 के मगरबी और मशरक़ी अतराफ़ में इत्तेहादी तैयारों की गोलाबारी से 13 हूसी और साबिक़ सदर अली अब्दुल्ला साले के वफ़ादार जंगजू हलाक हो गए। वस्ती शहर अल-जौफ़ में बमबारी से हूसी लीडर अबू अशाल समेत 3 दीगर जंगजू हलाक हुआ। अल-बैज़ा गवर्नरी के इलाके अशसाल बक़ीफ़ा में 2 मकामात पर, जबकि अल-मनासह के मकाम मज़ाहमतकारों के हमलों में कम से कम 7 हूसी बागी हलाक और कई ज़ख्मी हो गए हैं। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारी वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएं। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की नशर व इशाअत में इदारे का ताउन करने वाले अहम तिजारती इदारे
علی ایجوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل، بھٹکل ٹریول ہاؤس بھٹکل، رپکو بھٹکل، افریقہ سپر والیو دبئی، اسٹار وے ٹریڈنگ دبئی، خالد قمیص عبداللہ ٹریڈنگ دبئی۔